Hello and welcome to the channel. I am Poonam Dua from M&A Education Academy of Literature, and with me you are watching mock test number 13. As you know, we are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Please do watch the previous 12 videos as well. I've given the link to all those videos in description. We are also providing complete explanation and additional information along with each right answer. So please do watch the whole video carefully, note down everything, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams most importantly. With this wish, let us start the video now. Question number 121, because 120 questions 120 क्वेश्चंस हम पहले ही प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 121. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when it alteration finds or bends with the remover to remove. अब यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स के बारे में क्वेश्चन किया गया, लव एंड रिमूव. लव एंड रिमूव ऑफ द second and fourth line is an instance of which of the following? Eternal rhyme, assonance, denotation or I rhyme. The correct answer is I rhyme. आई राइम में हम उस तरीके के वर्ड्स को यूज़ करते हैं जिनकी स्पेलिंग तो ऑलमोस्ट हमें सेम दिखती है, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी डिफरेंट होता है एक दूसरे से. पहले मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि लव है वर्ड और वर्ड है रिमूव या मूव. लव और मूव देखिए ओवीई पर एंड हो रहे हैं ये दोनों, बट स्टिल इनके प्रोनाउंसिएशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. तो इस तरीके के वर्ड्स को ही आई राइम की कैटेगरी में रखा जाता है. एंड आई राइम ऑल्सो कॉल्ड विजुअल राइम, इसको विजुअल राइम भी बोला जाता है. और अ साइट राइम इज अ राइम इन विच टू वर्ड्स आर स्पेल्ड सिमिलरली बट प्रोनाउंस डिफरेंटली. तो अब यही हाल हमारे इन दो वर्ड्स का है, लव और रिमूव का, कि दे आर स्पेल्ड ऑलमोस्ट सिमिलरली. इनके लास्ट के सिलेबल देखिए LOVE MOVE. अगर सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होती तो क्या होता, LOVE लव और MOVE मव होता, या फिर MOVE मूव और LOVE लूव होता. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. LOVE हमारा लव की तरह प्रोनाउंस करा और MOVE मूव की तरह. सो लव एंड रिमूव आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एन आई राइम, अ पेयर ऑफ वर्ड्स और syllables that are spelled similarly even though pronounced differently. Let us move on to the next question. Question number 122. Tam O'Shanter is a narrative poem written by which of the following? The correct answer is Robert Burns. ये एक narrative poetry है written by Robert Burns, Scottish poet थे जो कि, and it was written in 1790 में लिखी गई थी ये. प्लीज़ आप लोग ईयर्स को बहुत ही अच्छे से नोट करिएगा. Let us move on to the next question. Question number 123. Sir Thomas Wyatt and Henry Howard, Earl of Surrey, are known for their translations of the correct answer Petrarch's sonnet. Henry Howard, Earl of Surrey, with Sir Thomas Wyatt, introduced into England the styles and meters of Italian humanist poets and so laid the foundations of great age of English poetry. Together, both of them, due to their excellent translations of Petrarch's sonnet, are known as fathers of English sonnets. तो देखिए अब आपको कितना अच्छा एक नया फैक्ट जानने को मिल रहा है अगर आप पहले से नहीं जानते थे. These two are known as fathers of English sonnet. तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिएगा. Let us move on to the next question. Okay. Question number 124. Dash is a formal type of poetry that expresses personal emotions or feelings typically spoken in the first person, popular during Elizabethan period. हम किसकी बात करें? हम बात कर रहे हैं लिरिक पोइट्री की. लिरिक पोइट्री इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ पोइट्री जो कि एक्सप्रेस करती है पर्सनल इमोशन, जो कि हमारे सब कुछ हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है. पर्सनल इमोशंस, फीलिंग्स टिपिकली स्पोकन इन द फर्स्ट पर्सन, एंड द टर्म owes its importance to literary theory of Aristotle. अब आप ये चीज़ ध्यान से सुनिए. एरिस्टोटल की डेवलप की हुई एक थ्योरी थी जिसमें पोइट्री को 3 पार्ट्स में बांटा गया था, लिरिकल, ड्रामेटिक एंड एपिक. ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ अच्छे से नोट कर लीजिए, लिरिकल, ड्रामेटिक एंड एपिक. मच लिरिक पोइट्री डिपेंड्स अपॉन रेगुलर मीटर. तो
लिरिकल पोइट्री किस पर डिपेंड करती है? रेगुलर मीटर, रिदम्स, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस पर। और अगर आप लोग स्ट्रेस अनस्ट्रेस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए. आई विल प्रोवाइड यू द वीडियो टू द बेसिक्स ऑफ स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड एज वेल. लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 125. द स्पेनिश ट्रेजेडी किसके द्वारा लिखी गई है? द स्पेनिश ट्रेजेडी इज रिटन बाय थॉमस किड. द स्पेनिश ट्रेजेडी और हेरोनिमो इज मैड अगेन, ये इसका अल्टरनेट नेम है, इज एन एलिजाबेथन ट्रेजेडी बाय थॉमस किड बिटवीन 1582 एंड 1592. तो 1582 और 92 के बीच कहीं लिखी गई है ये. हाईली पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल इन इट्स टाइम, द स्पेनिश ट्रेजेडी एस्टैब्लिश्ड अ न्यू जॉनर इन इंग्लिश लिटरेचर, द रिवेंज प्ले और रिवेंज ट्रेजेडी. तो स्पेनिश ट्रेजेडी के साथ साथ ही एक नया जॉनर, एक नई कैटेगरी डेवलप हुई थी, दैट वाज कॉल्ड रिवेंज ट्रेजेडी और रिवेंज प्ले. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 126. क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं क्या कह रहा है. द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री इज कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग? दिस इज कॉल्ड टोटेल्स मिसैलिनी. Usually called Total's Miscellany, was the first printed anthology of English poetry, first published by Richard Total in 1557. 1557. तो ईयर्स को ध्यान रखिएगा आप. आपको क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस आंसर करते हुए, सॉल्व करते हुए काफ़ी आसानी हो जाएगी. 1557 में टोटेल्स मिसैलिनी पब्लिश हुई थी बाय रिचर्ड टोटेल इन लंदन. इट रैन टू मेनी एडिशंस फर्दर इन 16th century. Let us move on to the next question. Question number 127. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topmost towers of Ilium? These famous lines are from the play. Which of the play? The correct answer is Dr. Faustus. In Christopher Marlowe's Dr. Faustus, जो कि 1604 का प्ले है, ईयर्स में आपको साथ साथ इसलिए बताती हूँ कि आपकी मेमोरी में बिल्कुल फिट बैठ जाए. आप सारे वीडियोस मेरे अगर दोबारा देखेंगे तो यू विल रियली फाइंड कि आपको काफ़ी एडिशनल नॉलेज मिली है और काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे. तो वापस आ जाते हैं. इन क्रिस्टोफर मार्लोस डॉक्टर Faustus conjures the shade of Helen. Upon seeing Helen, Faustus speaks the famous lines. Was this the face that launched 1,000 ships and burned the topmost towers of Ilium? Okay, next question number 128. Christopher Marlowe, Robert Greene, Thomas Nash, John Lilly, Thomas Lodge and George Peele were called which of the following? यूनिवर्सिटी विट्स. यूनिवर्सिटी विट्स के बारे में भी मेरा एक सेपरेट वीडियो है, आप कमेंट कर दीजिएगा तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी. द यूनिवर्सिटी विट्स इज अ फ्रेज used to name a group of late 16th century English playwrights and pamphleteers, I must say, who were educated at the universities. और ये universities हुआ करती थी either Oxford और Cambridge, जो कि आज भी बहुत famous है. And these people became very popular secular writers. All these names which are given in the question. Okay, let us move on to the question number 129 now. Question number 129 is about Dr. Johnson. Dr. Johnson's great work, prefaces biographical and critical to the works of English poets, is popularly known as which of the following? It is known as the Lives of the English Poets. Johnson's last great work, prefaces biographical and critical to the works of the English poet, is conveniently known as the Lives of the Poets, and it was first published in 1779. 1779. प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा हर चीज़ को, हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन को. इसी के साथ हम आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इस वीडियो के. सर रॉजर डी कॉवरले इज अ फिक्शनल कैरेक्टर क्रिएटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? Sir Roger D. Coverley, fictional character devised by Joseph Edison. That is the answer. Who portrayed him as the author of papers and letters that were published in Edison and Richard Steele's influential periodical The Spectator. तो सर रॉजर
डी कॉवर्ले एक फिक्शनल कैरेक्टर थे जिनको डिवाइस किया था जोसेफ एडिसन ने, और पोर्ट्रे किया था उनको एज द ऑथर ऑफ पेपर्स एंड लेटर्स, एक पीरियोडिकल का नाम था द स्पेक्टेटर, जो कि एडिसन दैट वर पब्लिश्ड इन एडिसन एंड रिचर्ड स्टीलीज इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल। तो एडिसन और रिचर्ड स्टीली का एक इन्फ्लुएंशियल पीरियोडिकल था द स्पेक्टेटर, उसके ऑथर की तरह पोर्ट्रे किया गया था इस कैरेक्टर सर रॉजर डी कॉवर्ले। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई। प्लीज़ नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग एंड वी हैव रीच टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप यहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे तो वीडियो नंबर 14 तक पहुँच सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।